Good morning. I expect all of you are happy today and you enjoy online classes that is being conducted from Divine Public School. Every day, we try to teach you a chapter so that you will be able to write the answer for all questions. In the future, you will not have to face any problems. Today, I am going to teach the student of class 3. The chapter 3 is Leaves of Plants. In this chapter, we will study different kind of plants and their leaves. Whenever we try to search the plants, we recognize them by their leaves. Leaves of palm tree, leaves of mango trees, leaves of banana trees, whatever we see, we know them by their leaves. Today we'll study different kind of plants and different shape and sizes of their leaves. We use these leaves by different ways in our daily life. In ancient time, our ancestors used leaves of plants, leaves of bushes as medicines. They use them to take food, means as utensils. Generally, we take plate to eat our food. But in ancient time, they used palm or banana leaves to take food. Nowadays, too, if you go in Western, you will get the people of that area serve you food on banana leaves. It means different kinds of leaves can be used by the different ways. So, we should know about the different kinds of leaves. In this chapter, we'll study about it. You might have listened, if you are suffering from some diseases, you take neem leaves. Sometimes it is being eaten, sometimes we use them as medicines. In the same way, there are many things that we use in our daily life. Our forests, our plants, they are very important to us. Directly or indirectly, we are dependent upon plants. You may ask, if we are non-vegetarian, in that case, we are not dependent upon plants, but it's wrong. Even if we take God, whatever else, but they are not primary consumers, so we are dependent upon them. They are dependent upon grasses. Now, I would like to make you understand in Hindi so that you will be able to write all the questions, answer of all the questions in your own words. अलग अलग तरह के जो पत्ते होते हैं उसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में अलग अलग तरह से करते हैं और वही हम अध्याय 3 में पढ़ने जा रहे हैं जो विज्ञान का एक अध्याय रहा है, लीव्स ऑफ प्लांट्स, यानी पौधे के जो अलग अलग पत्ते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सामान्यतः आप देखे होंगे कि पत्ते का उपयोग हम अलग अलग तरह से करते हैं। यदि कोई बीमार होता है तो उसे नीम का पत्ता खिलाया जाता है या उसका काढ़ा पिलाया जाता है ताकि वो स्वस्थ हो जाए, क्योंकि पता है कि ये मेडिकेटेड प्लांट है। आपके घर में तुलसी होगा, ये भी मेडिकेटेड प्लांट है। जब भी कोई बीमार होते हैं इनका पत्ता दिया जाता है ताकि उसका जो एंटीबॉडी है वो मजबूत हो जाए और आने वाले समय में वो स्वस्थ रहें। ये इसलिए आपको पढ़ाया जाता है ताकि भविष्य में यदि इसकी जरूरत पड़े तो आप इसका उपयोग करें और आप स्वस्थ रहें, दूसरे को भी ऐसा सलाह दें ताकि वो लोग स्वस्थ हों। सिर्फ इतना ही नहीं, पत्ते का उपयोग हम एक प्लेट के रूप में भी करते हैं। अभी भी जब लोग खाना खाते हैं तो केले के पत्ते का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः छठ के समय में आपको याद होगा
या आप अगर चले जाते हैं दक्षिण की ओर तो वहाँ आज भी भोजन केले के पत्ते में दिया जाता है, क्योंकि उसका एक गुण है, उसके ऊपर एक लेयर होता है और वो लेयर ऐसा है कि वो पानी को जमने नहीं देता। अगर आप भोजन करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर उसमें भोजन लेते हैं तो वो उसके साथ चिपकता नहीं है, क्योंकि एक तैलीय लेयर होता है उसके ऊपर। तो अलग अलग पत्ते के बारे में आज जानकारी हम प्राप्त करेंगे। कमल का फूल आपने जरूर देखा होगा, उसके पत्ते पर कभी भी पानी नहीं चिपकता। बाकी पत्ते को आप तोड़कर पानी में दे दें तो वो सड़ जाएगा, लेकिन वो नहीं सड़ता, क्योंकि इसको कहते हैं अनुकूलन। अपने आप को एडजस्ट करने की हर जीव में एक सिस्टम प्रकृति ने दे रखा है, जिसके चलते वो अपने आप को एडजस्ट करता है। एडेप्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच a plant or a living being adjust oneself according to climate. एडेप्टेशन वही है जो अपने आप को क्लाइमेट के अनुसार ढाल ले। तो कमल के पत्ते का एक गुण होता है, जब उसे आप तोड़ेंगे तो उसमें एक लेयर निकलेगा, उसके अंदर आपको वो ग्रीन पार्ट निकलेगा जिसको हम कहते हैं उसमें बहुत अधिक क्लोरोफिल है, और उसे बचाने के लिए एक लेयर प्रकृति ने उसे दे रखा है। उसी तरह से पीपल का जो पत्ता है तो उसका एक उपयोग अलग है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जितने भी वैज्ञानिक रहे थे, ऋषि मुनि रहे थे, जिसे आज आप साइंटिस्ट कहते हैं, वो भारत में सबसे अधिक होता था, भारतवर्ष में सबसे अधिक होता था। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। जो शोध भारत में वर्षों पहले हो चुका है उसका रिजल्ट आज मिल रहा है। आप इसको समझिए कि कितने पहुंचे हुए यहाँ के वैज्ञानिक रहे थे। आज हम पीपल और तुलसी का जो पूजा करते हैं, इसका एक रीजन यह है कि यह 24 घंटा ऑक्सीजन इमिट करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। बाकी जितने प्लांट हैं वो दिन और रात परिवर्तन होता है, दिन में वह ऑक्सीजन छोड़ता है और रात में वही ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसलिए आपने सुना होगा कि लोग जब बगीचे में सोते थे रात में तो कभी मृत अवस्था में पाए जाते थे तो लोग कहता था कि यहाँ भूत है। वैज्ञानिक कारण यह है कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड उस पेड़ से उसे मिलता था कि वह सेंसलेस हो जाता था, कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती थी। तो वैज्ञानिक रीजन ये रहा था। तो जो दो पेड़ है पीपल और तुलसी, उस दोनों का हम लोग पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वहां से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अब हम पत्ते के बारे में, उसका जो शेप होता है, यानी उसका जो आकार होता है वो भी अलग अलग होता है, उसका रंग भी अलग अलग होता है। इसलिए आप देखे होंगे कि सामान्यतः क्लोरोफिल के कारण जो पत्ते हैं उसका जो रंग है वो ग्रीन होता है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि किस पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो जो ग्रीन प्लांट हैं जिसके पत्ते का रंग हरा है उसमें क्लोरोफिल होता है, और जिसमें नहीं है, दैट इज द डिफरेंट थिंग्स, सो वी यूज देम टू डेकोरेट आवर हाउस। जिसका अलग रंग का होता है, हरा नहीं होता है, हम उसका प्रयोग अपने घर को सजाने में करते हैं क्योंकि वो अलग होता है, दूसरे से हटकर होता है। इसलिए इसके जो आकार हैं और इसके जो रंग हैं उसकी एक अपनी विशेषता भी होती है। आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये कि दे प्लांट प्रोड्यूस इट्स ओन काइंड, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। किसी भी सजीव का एक गुण होता है प्रजनन, अर्थात वो अपने ही तरह के पेड़ को, यदि एक पेड़ है आम का और उसका आप गुठली लगा दें तो आम का ही पेड़ होगा, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो वो रिप्रोडक्शन तभी करेगा जब वो लिविंग बीइंग है, और रिप्रोडक्शन करने के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय देयर सीड्स, some reproduce by their roots, but some plants are they reproduce by their leaves। यानी पत्ते से भी रिप्रोडक्शन होता है, पत्ते से भी प्रजनन की प्रक्रिया होती है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसके पत्ते को अगर आप जमीन में गाड़ दें तो वहां से आपको नया प्लांट हो जाएगा। इसका मतलब कि सिर्फ जो प्लांट, ये लीफ है, वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस का ही काम नहीं करता है।
some plants are, they use their leaves to reproduce young ones. वैसे तो फूड फैक्ट्री ही कहा जाता है लीफ को। कारण क्या है कि जड़ के मदद से वो पानी खींच लेता है। अगर आप गर्मी के दिन में छोटे छोटे पौधे को पानी ना दे तो वो मर जाता है, क्योंकि जो वाटर लेवल है ग्राउंड का वो नीचे चला जाता है। इसलिए आपको जरूरी है कि आप उसे पानी से बार बार संचित करें। तो जब वो वाटर खींच लेता है और पत्ते में एक छिद्र होता है जिसे स्टोमाटा कहा जाता है, उस स्टोमाटा के माध्यम से वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर लेता है और क्लोरोफिल पत्ते में मौजूद होता है। इसलिए भोजन बनाने का काम पत्ते में ही होता है, इसलिए उसे खाना बनाने का मशीन भी कहा जाता है, फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट। जैसे आपके घर में किचन है, उसी तरह पौधे में भी किचन उसका पत्ता ही होता है। यदि पत्ते को तोड़ दिया जाए बार बार तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ पौधे हैं जो नष्ट हो जाएंगे, जो समाप्त हो जाएंगे। इसमें आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है कि आसपास के जितने भी पौधे हैं छोटे बड़े, उस पत्ते को लीजिए, तोड़िए और उसके बारे में लिखिए कि वो कैसे दूसरे से अलग है। अब इसमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं लीव्स के, जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना चाहिए। लीफ ब्लेड, ब्लेड तो जानते हैं आप, तो पत्ते में भी ब्लेड होता है। कुछ ऐसे पत्ते हैं जो आपके स्किन से होकर अगर उसे पार किया जाए तो स्किन को काट देगा, इतना तीखा होता है। तो जो बाहरी उसका पार्ट होता है उसे लीफ ब्लेड कहा जाता है। आशा है समझ गए होंगे। अब वेन, वेन मतलब होता है नस। जिस तरह हमारे शरीर में नस होता है और वहां से होकर प्रवाह होता है, रक्त संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, पत्ते में भी, चूंकि वो भी लिविंग बीइंग है। कुछ आज ऐसी चीज आपको बताएंगे, शायद इसकी जानकारी पहले आपको नहीं होगी, कि पत्ते में भी ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसलिए उसमें भी वेन होता है, उसमें भी नस होता है। हम उसका नाम अलग देते हैं, समझने के लिए यह है कि उसी के थ्रू पानी ऑब्जर्व करता है और उसी के थ्रू जो खाना बनाता है उसे ऑल पार्ट्स में भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि पत्ते से खाना बनाते हैं और अपने पास रख लेते हैं, वो सभी पार्ट्स में उसे भेजते हैं। जड़ यदि काम कर रहा है, रूट होता है फाइबर और टैप रूट, ये दोनों यदि पकड़ने का काम करता है, फिक्सेशन का काम करता है, ऑब्जर्वेशन का काम करता है, तो उसे भी भोजन मिलता है और वहां से लीफ भेजता है। तो उसमें वेन होता है, नस होता है जिसके थ्रू भेजा जाता है। साइड वेन यानी जो मेन वेन है उसके बगल में पतले पतले वेन होते हैं जिसे कहा जाता है साइड वेन। और लीफ स्टॉक यानी पत्ते जहां से ब्रांच से जुड़े होते हैं, शाखा। आप देखे होंगे जो पौधे होते हैं या जो बड़े पेड़ हैं उसमें ब्रांचेज होते हैं, यानी स्टेम और ब्रांचेज, उसमें जाकर पत्ता होता है। तो वो जहां से जुड़े होते हैं उसे हम लीफ स्टॉक कहते हैं। आशा है कि यहां तक आप समझ गए होंगे। हम कहां कहां उपयोग करते हैं प्लांट्स का? पहले तो भोजन में ही हम इसका उपयोग करते हैं। कैसे? तो जब भी हम भोजन करते हैं तो सब्जी लाते हैं कहां से? सोचिए कि यदि प्लांट्स नहीं होता तो सब्जी कहां से मिलता? प्लांट्स नहीं होता, पौधे नहीं होते तो हमें ग्रेन्स कहां से मिलता? आप चावल धान से लेते हैं, और अगर गांव से हैं आप तो जरूर आपको पता होगा कि धान की खेती कैसे होती है। यदि आप शहर से हैं, कभी गांव जाएं तो जानने का आप ये प्रयास करें कि हमें वो प्राप्त कहाँ से होता है, वो पौधे कैसे होते हैं और किस तरह से हमें वो पैडी मिलता है, धान मिलता है, जिससे हम हश्क निकाल कर चावल ले आते हैं घर में और चावल खाते हैं। सेम प्रोसेस गेहूं का ही है, दाल का भी है। तो जो भी चीज हम लेते हैं वो हमें प्लांट से मिलता है और हम प्रयोग करते हैं उसको अपने दैनिक जीवन में। कुछ ऐसी चीजें जैसे फ्रूट्स हैं,
अभी आम का सीजन चल रहा है, आप आम खाते होंगे, तो कहाँ से मिलता है? ये प्लांट से मिलता है। तो हम वहाँ से क्या क्या लेते हैं? पहले तो ग्रेन यानी अनाज, पल्सेस दाल, वेजिटेबल्स सब्जियां, स्पाइसेस मसाला वहीं से मिलता है, फ्रूट्स वहीं से मिलता है, ऑयल जो सीड होता है, जैसे सरसों है मस्टर्ड ऑयल, तो सरसों के सीड से सरसों का तेल निकाला जाता है, सोयाबीन के सीड से उसका ऑयल निकाला जाता है। तो हम लोग उस पर डायरेक्ट निर्भर करते हैं और हम इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, और मेडिसिन में भी उसका उपयोग होता है। क्योंकि आज भी जो आयुर्वेद है वो निर्भर करता है, जंगल में वो लोग जाते हैं और वैसे चीज़ों को ढूंढ कर लाते हैं जो रोग प्रतिरोधी रहा हो। अब इसको जोड़िए कि जब आप गंगा स्नान करने जाते हैं तो आप कहते हैं यह पवित्र नदी है, गंगा जल में कीड़ा नहीं होता है। कारण क्या है कि जहाँ हरिद्वार से यह निकलती है, गौमुख से जब निकलती है तो निकलने के बाद कुछ ऐसे जड़ी बूटी से होकर वो पार करता है, निकलता है, जहां औषधि से टकराते हुए वह पार करता है, और इसका परिणाम है कि उसका एंटी इतना बन जाता है कि कीटाणु उसमें जीवित नहीं रह पाता है। अर्थात कि हमारे लिए पेड़ पौधे बहुत महत्वपूर्ण हैं जिंदा रहने के लिए। पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस, और तीनों का महत्व है हमारे जीवन में। अब अपने दैनिक जीवन से इसको जोड़िए कि जब हम भोजन करते हैं तो ठोस लेते हैं, चावल, रोटी, दाल, जो भी चीज लेते हैं वो इंपॉर्टेंट है। हम भूखे 7 दिन तक रह सकते हैं। इसके बाद आता है द्रव्य यानी लिक्विड। पानी के बिना हम लोग कितने दिन रह सकते हैं? सोचिए तो 2 दिन रह पाएंगे क्या? और उससे भी इंपॉर्टेंट है गैस। विदाउट ऑक्सीजन वी कांट लिव फॉर 5 मिनट्स। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर है तो वो गैस का फॉर्म होता है, और वो हमें मिलता कहां से, इसके बारे में सोचिए। पेड़ से ही मिलता है। इसलिए अभी सरकार जोर दे रही है कि वी शुड ट्राई टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू सेव आवर लाइव्स। अभी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से ओजोन लेयर बर्बाद हो रहा है, हम अलग अलग तरह के बीमारी से गुजर रहे हैं। इस पर चर्चा कीजिए। वॉट एवर वी स्टडी दीज आर रिलेटेड टू आवर लाइफ, वी शुड कीप इट इन आवर माइंड। हमें जो सरकार पढ़ाती है इसलिए नहीं कि हम डिग्री ले लें, हमें इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि इसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कर सकें। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स। यदि हम इसको समझेंगे तो हम क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। Whenever, whatever we are asked, we'll understand the things and write the answer of all questions. तो हमें ये समझना होगा। आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे कि इसका उपयोग कहाँ कैसे किया जाता है। तो लास्ट चीज यही बताना है कि जो प्लांट है वो हमें ठोस भी देता है, जैसे गेहूं, चावल, दाल, सब्जी। लिक्विड भी देता है, जैसे ऑयल सीड्स से आप ऑयल निकालते हैं, और गैस भी देता है, वायुमंडल को संतुलित करता है, एयर साइकिल को कंप्लीट करता है और हमें ऑक्सीजन देता है। सो प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट टू अस। वी यूज देयर रूट्स, देयर स्टेम, देयर लीव्स, देयर फ्रूट्स, देयर सीड्स। सो वी शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट, save more and more plants, more and more trees. अब आपको यह लिखना है, क्वेश्चन तो अलग होंगे, कि कौन ऐसे प्लांट्स हैं जिसका हम रूट यूज करते हैं, कौन से ऐसे प्लांट हैं जिसका हम स्टेम यूज करते हैं, कौन से ऐसे हैं जिसका हम लीफ यूज करते हैं, जिसका हम सीड यूज करते हैं, जिसका हम फ्रूट्स यूज करते हैं। इफ यू राइट the answer of these questions, I expect you will not have to learn the answer of questions. You will write yourselves and you will enjoy your study. Thank you.